Good morning, everyone. Yesterday we have started a new chapter that is from the Diary of Annie Frank. Today we are going to complete it. But before that, let's revise what we had read yesterday. Yesterday we read about the Annie Frank. That Annie Frank, she was a German girl, uh, and she was born in a Jewish community. And when the Nazis party they were in power, so to hide themselves they had shifted to the Netherlands. वो नीदरलैंड में चले गए थे, but as the Nazis gained power in the Netherlands, देन दे हैव टू हाइड देमसेल्फ, तो उनको अपने आप को छुपाना पड़ा था. एंड देयर दे वर लिविंग इन हाइडिंग. 2 साल हाइडिंग में रहने के बाद फाइनली दे वर कॉट एंड सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन सेंटर वेयर एनी वॉज डाइड विद टाइफस, जहाँ पे जो एनी थी वो टाइफस से मर गई थी. एंड फॉलोड बाय हर elder sister Margot. And in the chapter we had read that she got her diary on her 13th birthday, and she started writing in her diary. First it was a strange experience for her because she was thinking that nobody would be interested in reading the musings of a 13-year-old girl. She was saying that nobody can even believe that a girl can be so lonely. Means a 13-year girl can be so lonely in this world, and this is not the reality as well, because she was saying that she is having around 30 friends, but she is not able to share her feelings with them. वो अपनी जो feelings हैं उनके साथ share नहीं कर पाती, because maybe she cannot confide on them, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती. So means somewhere the problem is in her. She started writing her diary, and she said that before writing the diary she has to mention all the details of her family, otherwise no one would be able to understand what she had written. So she gave a brief sketch about her family. अपनी family के बारे में brief sketch लिखती है वो. She said that her father Otto Frank is the most adorable father in the world, and he got married with her mother when he was 36 and her mother was 26. And Margot, her elder sister, she was born in Frankfurt. वो Frankfurt में born हुई थी, and she was 3 years elder than the she was 3 years elder than the Annie Frank. Margot was born in 1926 and Annie Frank was born in June 1929. Earlier, Annie's father, that is Otto Frank, he had shifted to the Holland, and after that her mother also immigrated there. And at that time Margot and Annie, they had been sent to Aachen to the grandmother. And after a few days Margot, she also went to Holland in December, and after that in February Annie Frank also put on the table as a present for the Margot. She also said that there she started her Montessori nursery school. वहाँ पर उसने स्कूल में जाना स्टार्ट किया, and she's when she was 6 year old she had entered into the first grade. And when she was in the 6th grade, her headmistress was Mrs. Coopers, and they both were in the tears when they bid a farewell to each other. In 1941, her grandmother became very ill, so her birthday was not celebrated properly. But her grandmother was died in January 1942, and in that year she had celebrated her birthday. She said that nobody can even imagine how much she is thinking about her grandmother and how much she loved her. She lit an extra candle on her 13th birthday. अपना जो 13th birthday था उसने एक extra candle लगाई थी अपनी grandmother के लिए to show her love, ताकि अपना जो प्यार है वो उनको show कर सके. Right? We have read up to here. हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे. दिस इज़ द एंट्री दैट शी हैज़ रिटन इन हर डायरी. सबसे फर्स्ट एंट्री जो उसने अपनी डायरी में लिखी है, दैट इज़ ऑन 28 जून 1942, एंड इट वॉज अ सैटरडे को. वट शी इज़ रिटन, डियरेस्ट किटी. अब किटी कौन है? किटी इज़ द नेम ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक की डायरी का नाम है किटी. उसने अपनी जो डायरी है उसका नाम क्या रखा है? किटी. She is saying the entire class was in quacking in its boots. Quacking in its boots is a idiom. वो एक idiom है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? नर्वसनेस के लिए. जब हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और किसी चीज़ के लिए बहुत डेस्परेटली वेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाकिंग इन इट्स बूट्स. शी वॉज सेइंग दैट हर एंटायर क्लास वॉज क्वाकिंग इन इट्स बूट्स. जो उनकी पूरी क्लास थी वो अपने बहुत ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड थी.
The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form. That it's a kind of a result day, उनके लिए वो एक तरह का result day था. और रीज़न यही था कि मतलब उनकी जो फोर्थ कमिंग आने वाली जो मीटिंग थी, इसमें वो जो टीचर्स थे वो ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन सा बच्चा जो है वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा उसी सेम क्लास में रहेगा. शी सेड दैट हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स. कहते आधे से ज़्यादा क्लास जो थी वो क्या कर रही थी, शर्त लगा रही थी. जी एन आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. जी एन उसकी फ्रेंड का नाम है कहती, और मैं, हम दोनों हंस रहे थे उन सिली बेवकूफ़ लड़कों के ऊपर, दो लड़कों के ऊपर जो कि हमारे पीछे बैठे हुए थे. सी एन एंड जैक्वस, क्या नाम था उनका, सी एन एंड जैक्स. हु हैव शेक द एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड. जिनने की मतलब अपनी स्टेक्ड मतलब दाव पर लगा देना. जिन्होंने कि अपनी जो पूरी हॉलीडे की सेविंग्स थी उसको दाव पे लगा दिया था, बेड पे लगा दिया था कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा कौन नहीं जाएगा. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, कहते सुबह से लेकर रात तक दे वर टॉकिंग अबाउट दैट इट्स यू आर गोइंग टू पास. वो कहते तुम पास हो जाओगे. एंड द अदर वन वाज सेइंग नो आई एम नॉट, कि मैं नहीं हूँगा. येस यू आर, तुम हो जाओगे. नो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँगा. Even G's pleading glances and my angry outbursts cannot calm them down. कहते ना तो जीज की जो प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्ट करना, जो उसकी रिक्वेस्टेड ग्लांसेस थे, देख रही थी रिक्वेस्टिंग वे में उनकी तरफ कि तुम चुप हो जाओ. ना ही मेरे जो एंग्री आउटबर्स्ट थे, मेरे गुस्से वाली जो बातें थी वो उनको शांत नहीं करा पा रही थी. मीन्स वी वर नॉट एबल टू काम देम डाउन. उनको चुप नहीं करा पा रहे थे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. कहती है कि मतलब अगर तुम मुझसे पूछो तो काफ़ी सारी जो डमीज़ होती है, जैसे कठपुतली होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्लास के लिए यूज़ करती है. कहती है कि क्वार्टर यानी कि 1/4 ऑफ द क्लास जो है, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे तो 1/4 ऑफ द क्लास जो है उसको मतलब इसी फॉर्म में रहना चाहिए, नेक्स्ट फॉर्म में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. लेकिन कहती है जो टीचर्स हैं ना वो इस दुनिया के सबसे अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं. मतलब अनप्रडिक्टेबल, जिनके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. तो वो ये कहते हैं दे आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. इस दुनिया के सबसे अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. कहते मैं अपनी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं और अपने बारे में ज़्यादा वरीड नहीं हूँ. वी विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. कहती सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ और वो क्या है, मैथ्स है. एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. कहती है एनी वेज हम सारी चीज़ें हम लोग क्या ही कर सकते हैं कि हम लोग वेट ही कर सकते हैं. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हर्ट. और मतलब हम एक दूसरे को यही कह सकते हैं कि हमें उम्मीद नहीं आनी चाहिए, हमें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए. आई गेट अ लॉन्ग पार्टी वेल विद ऑल माई टीचर, प्रिटी वेल विद माई टीचर्स. कहते हैं कि मेरा जो रिलेशन है मेरे टीचर्स के साथ वो काफ़ी अच्छा है. देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women. कहते हैं हमारे जो स्कूल है उसमें मतलब जो हमें पढ़ाते हैं उसमें 9 टीचर्स हैं, 7 men हैं एंड 2 women हैं. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचर्स मैथ्स. कहते जो मिस्टर किसिंग है एक ओल्ड फैशन बंदा है, वो हमें मैथ्स पढ़ाता है. बूढ़ा है और ओल्ड फैशन है, वो हमें मैथ्स पढ़ाता है. वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस. कहते वो मुझसे बहुत गुस्सा रहते हैं काफ़ी टाइम से. फॉर एजेस में हमेशा से वो मुझसे बहुत नाराज़ रहता है. अनॉयड मीन्स नाराज़ रहना. बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ क्लास में. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. कहते हैं उन्होंने काफ़ी वार्निंग्स देने के बाद फाइनली मुझे एक्स्ट्रा असाइनमेंट, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट. उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने के लिए दिया, अ चैटर बॉक्स. और ऐसे का नाम क्या था, अ चैटर बॉक्स. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. चैटर बॉक्स, चैट मीन्स बात करना, चैटर बॉक्स मीन्स बातें करने वाला. तो चैटर बॉक्स के ऊपर उन्होंने एक ऐसे उसको लिखने के दिया. नाउ शी वॉज थिंकिंग कि व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, कि उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं. I'd worry about that later. कहती उसके बारे में बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी. I decided, मैंने डिसाइड किया. I jotted down the title in my notebook, कि ये जो ऐसे है मैं उसको अपनी नोटबुक में लिखूँगी. Tucked it in my bag and tried to keep quiet. उसको मैंने अपने बैग में रख लिया, टक कर लिया, अटैच कर लिया और उसके बाद में चुपचाप बैठने की कोशिश की. That evening after I had finished,
कहते उस शाम को जब मैं फिनिश हो गया था मेरा होमवर्क, रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मतलब जब मेरा बाकी का काम फिनिश हो गया था, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो वो जो नोट रखा हुआ था बैग में उसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसने मेरी आइज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। कहते कि मैंने सोचना शुरू किया उस सब्जेक्ट के बारे में, द चैटर बॉक्स के बारे में, अपने जो पेन की टिप थी, जो ऊपर का टॉप होता है, उसको दांतों में चबाते हुए मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। Anybody could ramble on and leave big spaces between the words. Ramble on means to talk nonsensely, aimlessly. कहता है मेरी जगह कोई और होता तो मतलब वो उसके ऊपर ऐसे ही लिख देता एक एक लाइन छोड़ के, और जो वर्ड्स हैं उनके बीच में स्पेसेस छोड़ के, मतलब ऐसे लिख देता उसको एज अ फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के लिए। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन जो मेरा आइडिया था वो ये था कि मतलब मुझे उसके अंदर कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स लिखनी है जिससे कि मैं उनको ये समझा पाऊँ कि जो बातें करना वो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ताकि जो मतलब बातें करना क्यों ज़रूरी है उसके लिए मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ, मना पाऊँ। तो उसके लिए मुझे उसमें आर्ग्यूमेंट्स लिखने थे, ना कि मतलब मेरे को इस फॉर्मेलिटी उसमें एक एक लाइन छोड़ के वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ के लिखना था। गॉट इट? आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। कि तो मैंने सोचा, बहुत सोचा, और अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी। क्या तो मैंने 3 पेजेस लिख दिए उस ऐसे के ऊपर जो कि मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किया था, मुझे एज ए एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। एंड वॉज सेटिस्फाइड, ओके, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी थी उससे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेड। उसमें मैंने क्या लिखा था, उसमें मैंने अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो मैंने अपनी बातें थी, उसमें लिखा था कि जो टॉकिंग है, बातें करना जो है, वो स्टूडेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। ट्रेड मीन्स क्वालिटी, वो उसके स्टूडेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ इसको कि मैं उसको अंडर कंट्रोल रखूँ, ज़्यादा बातें ना करूँ क्लास में, लेकिन फिर भी वो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी स्टूडेंट की। But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that's not much you can do about the inherited traits. कहती हैं हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कंट्रोल में रखूँ, लेकिन मैं अपने आप को इससे कभी भी बचा नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये जो आदत है ये मुझे अपनी मदर से मिली है। क्योंकि जो मेरी मदर है वो भी उतनी बातें करती है जितनी कि मैं करती हूँ, या फिर मेरे से भी ज़्यादा। कहती हो जो आपको क्वालिटीज़ इनहेरिडिटरी मिली है, मतलब जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, उन आदतों को आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। इनहेरिटेड मीन्स जो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होती है। कहते हैं कि वो जो आदतें हैं वो मुझे क्वालिटीज़ हैं वो मेरे मदर से मिली है, इनहेरिटेड है वो, मतलब तो उसको मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो क्वालिटी मुझे मेरे एंसेस्टर से मिले, तो आई कैन नॉट डू मच विथ इट। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। जो मिस्टर किसिंग थे, मैथ्स टीचर थे, उन्होंने मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे हंसना शुरू कर दिया। एंड व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और जैसे ही मैंने अपने नेक्स्ट लेसन में बातें करना शुरू किया, ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। और इस बार उन्होंने जो ऐसे मुझे लिखने दिया उसके ऊपर उसका क्या टॉपिक था, इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। इनकरेजेबल में जिसको ठीक ना किया जा सके, ठीक है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर नेक्स्ट 2 लेसन। कहते हैं कि मैंने उसके ऊपर भी उनको वो ऐसे जो था वो लिख के दे दिया, और उसके बाद जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने मेरे को नेक्स्ट 2 लेसन्स, मतलब अगले 2 सेशंस तक उन्होंने कंप्लेन नहीं की कि मैं बातें क्यों कर रही हूँ। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। लेकिन जैसे ही मैंने 3rd लेसन में बातें करना शुरू किया तो ही हैज़ लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब वो जो उनकी पेशेंस लेवल था उन्होंने लॉस्ट कर दिया। Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. तो उन्होंने मुझे कहा कि एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट, तुम्हारी पनिशमेंट ये है क्लास में बातें करने के लिए कि तुम्हें एक ऐसे लिखना है, और इस बार जो ऐसे का टॉपिक है वो है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। द क्लास रोड। कहते जो क्लास थी वो पूरा बहुत ज़्यादा हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू। कहते मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड। कहती अब तक मैं ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी, टायर्ड हो चुकी थी लिख लिख कर उस ऐसे के ऊपर।
माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. इनजेन्युइनिटी मीन्स ओरिजिनलिटी, मतलब जो भी मैं ओरिजिनल उसके ऊपर लिख सकती थी, जो मेरे आइडियाज़ थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. कहते अब ये टाइम आ गया था कि मैं कुछ और करूँ इस बार, समथिंग ओरिजिनल, कुछ और ओरिजिनल उसके ऊपर लिखूँ. माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री. कहते जो मेरी फ्रेंड सेन है जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी है, मतलब पोइम्स लिखने में काफ़ी अच्छी है, ऑफ़र टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. उसने मुझे ऑफ़र किया कि वो मेरी हेल्प कर देगी ऐसे को लिखने में शुरू से लेकर लास्ट तक. इन वर्स, वर्स मीन्स इन राइम, मीन्स इन अ रिदमिक वे. एंड आई जम्प फॉर जॉय. और कहते कि मैं ना खुशी से उछलने लगी. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन मी. जो मिस्टर किसिंग थे वो मेरे ऊपर एक मतलब मेरे ऊपर जोक करना चाहते थे, मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे. बट विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, मतलब जो उन्होंने ये रेडिकुलस बेकार सा सब्जेक्ट मुझे दिया था ऐसे लिखने के लिए, वो देकर वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे. बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. कहती लेकिन मैंने मेक श्योर किया कि वो जोक मेरे ऊपर ना आकर वो मिस्टर किसिंग के ऊपर चला जाए, मतलब वो जोक उन्हीं के ऊपर प्ले हो. आई फिनिश्ड माई पोएम. कहती मैंने अपनी जो पोएम थी उसको फिनिश किया. एंड इट वॉज़ ब्यूटिफुल. इट वॉज़ अबाउट अ मदर डक. कहती और वो जो पोएम थी वो बहुत ब्यूटीफुल पोएम थी, और वो एक मदर डक के ऊपर थी एंड अ फादर स्वैन, और जो फादर स्वैन था उसके ऊपर, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके की जो 3 बेबी डकलिंग्स थी. हु आर बिटन टू डेथ. उनको जो है पीट पीट कर मार दिया था बाय द फादर, मतलब जो फादर स्वैन था उसने 3 डकलिंग्स को पीट पीट कर मार दिया था. बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे. लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक इन द राइट वे. कहते हैं लकी बात है कि जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने वो जो जोक था उसको सही तरीके से लिया. ही रीड द पोएम इन द क्लास. उन्होंने वो जो पोएम थी उसको क्लास में रीड किया, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और उसके अंदर उन्होंने अपनी जो कमेंट्स थे उनको ऐड किया. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. और उन्होंने वो जो पोएम थी वो काफ़ी सारी दूसरी क्लासेस में भी सुनाई. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. कहते उसके बाद से जो मैं थी मुझे अलाउड कर दिया गया था क्लास में बातें करना, और उसके बाद कभी भी मुझे एज अ पनिशमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया था. ऑन द कॉन्ट्रेरी, कहती है उसके अपोजिट जो मिस्टर किसिंग थे, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. अब जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने भी क्लास में जोक करना स्टार्ट कर दिया था. योर्स एनी. तो वो लिखती है लास्ट में योर्स एनी. तो दिस इज़ द extract that has been taken from the diary of a young girl with slight adaptation. Now let's the comprehensions we can discuss and question answers we can discuss in the class. Why was Mr. Kissing annoyed with Annie? Mr. Kissing was annoyed with Annie because she was very talkative in the class. Why did he ask her? What did he ask her to do? He asked her to write an essay on the chatterbox as a punishment for talking. How did Annie justify her being a chatterbox in her essay? जो Annie थी उसने कैसे अपने आप को justify किया था कि वो एक chatterbox है अपने essay में. She justified her by saying that talking is an important trait of a student, and although she tried to have it in control, but she cannot do that because she got that quality inheritance, because her mother, she is also very talkative and maybe more than her, and she cannot do anything that about the traits that she got in inheritance, right? ये इसका आंसर. Do you think Mr. Kissing was a strict teacher? तुम्हें क्या लगता है जो मिस्टर किसिंग वो एक स्ट्रिक्ट टीचर? नो, वी डोंट थिंक दैट द मिस्टर किसिंग इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर, बिकॉज मिस्टर किसिंग ही टुक द जोक इन अ राइट वे, एंड after listening the last poem, he also started making the jokes in the class, right? So we cannot say that he was a strict teacher. What made Mr. Kissing allow Annie to talk in class? Her poem, the last poem that she wrote on mother duck and father swan who beat who beat the baby ducklings to death just because they were quacked too much. So when he read this poem, after that Annie was allowed to talk in the class. So here a chapter ends. यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. सबको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस इट लेटर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.